Hello, students. I am Ravi, and I'm a verbal ability and soft skill trainer. And today we will learn about noun and pronoun, which is the first module of our parts of speech. Now, I'll tell you what is the importance of noun and pronoun. Why should we pay more attention to this? Now, after going through this video, you will not be able to improve your communication skill, but you will also get some core concepts on these two topics. So let's start. नाउन. व्हाट इज अ नाउन? अगर हम बात करें नाउन कहते किसे, देखिए इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, एनिमल हो, या हमारी कोई फीलिंग्स या कोई एक्शन या स्टेट, सब का कुछ ना कुछ नाम है. इसी नाम को हम नाउन कहते हैं. सो नाउन इज नथिंग बट द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और अ फीलिंग. राइट? Examples like Ravi. So it is the name of a person. Ravi is the name of a person. Aradhya. Again, Aradhya is the name of a person. India, New Delhi. India and New Delhi. Again, it's a name of a place. India is a country and New Delhi is the capital. That is the city in India. Lion, cobra, the name of animals. Okay, car and mobile. This is the name of a thing, particular thing. Love, anger indicates the feelings or a state, right? So this is what noun is all about. So noun, we can say, that is nothing but the name of a person, place, animal, thing or a feeling, with the given examples. Now let's have a look at the different types of nouns, okay, that we have. Now the types of noun से कहते हैं. Proper noun is the name of a specific person, place, animal, thing. Alright, proper noun क्या होता है? किसी एक particular person का नाम, किसी animal का नाम, किसी जगह का नाम, ठीक है, और किसी thing का नाम हो सकता है. जैसे the capital of India is New Delhi. अगर हम पहला एग्जांपल देखें, the capital of India is New Delhi. Here India is the name of a country and New Delhi is the capital, again name of a city. So these two are proper nouns. So proper noun का आइडिया आपको समझ में आ गया होगा. proper noun का कॉन्सेप्ट ये है, it is nothing but the name of a specific person, thing, place or an animal. Next, he was born in October. Again, here October is the name of a month. So it is indicating as to which particular month he was born in. किस month में उसका जन्म हुआ था, right? He was born in October, right? Now, Snowy is the name of my rabbit. Snowy जो है वो मेरे rabbit का नाम है. Here it is referring to a particular animal, that is a rabbit, and its name, which is Snowy. So Snowy is a proper noun. Again, when I say Rahul and Rohit are best friends, Rahul और रोहित जो है वो अच्छे दोस्त हैं. So here we are referring to two particular person, जिनके नाम मैं बोल रहा हूं कि राहुल और रोहित ये दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं. So they are again a proper noun. I hope it's clear till here. Proper. The next type of noun that we have is common noun. Next जो हमारे पास noun है वो है common noun. Now what is a common noun? अगर हम common noun की बात करें, common noun कहते किसको है? Common noun is a noun which indicates a group or a class of person or a thing. ठीक है, तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में हमें नहीं बताता है, बट हमें किसी क्लास या किसी एक काइंड के बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल, हैव यू सीन माई डॉग? क्या तुमने मेरे कुत्ते को देखा है? सो डॉग हियर इज अ कॉमन नाउन. व्हाई? बिकॉज डॉग आई एम रेफरिंग टू इज not, I'm not taking the name of my dog. Okay, dog here refers to any a class of animal, right, or a kind of animal. So it can be a common noun. Next अगर हम example देखें, the car was parked under the tree, right? The car was parked. Again,
जो कार है वो एक ट्री के अंडर पार्क्ड है। तो कार क्या है? एक क्लास है, इट्स ए क्लास ऑफ अ थिंग, काइंड। बहुत सारी गाड़ियां हो सकती है, इट इज नॉट रेफरिंग टू एनी पर्टिकुलर कार, जैसे द ब्लू कार, द व्हाइट कार, इट्स नॉट रेफरिंग, और वी आर नॉट गिविंग द नेम ऑफ अ कार। ओके, हियर द कार मीन्स अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट। आई बॉट अ पेन yesterday, कल मैं एक पेन लेकर आया। तो पेन क्या है? पेन हमारे लिए एक क्लास ऑब्जेक्ट का है। इट इज रिफरिंग, इट कुड बी एनी पेन, कोई भी पेन हो सकता है। आई एम नॉट नेमिंग द पेन कि वेदर इट इज ऑफ रेनॉल्ड्स और इट इज ऑफ पार्कर, इट कुड बी एनी पेन। सो आई बॉट अ पेन हियर अगेन इज अ कॉमन नाउन। नेक्स्ट अगर हम देखें, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं किस स्कूल में जा रहा हूं, मैंने नाम नहीं लिया। आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर और अ स्पेसिफिक स्कूल, आई एम जस्ट टेलिंग आई एम गोइंग टू अ स्कूल। इट कैन बी एनी स्कूल, all right, it can be any school. So school here indicates a kind of thing or a kind of place. School कोई भी हो सकता है, it refers in general, okay, it is not pointing to something specific. So this is known as a common noun. Common noun का एक और मैं आपको बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊं, जो नाउन किसी एक क्लास के बारे में, किसी एक ग्रुप के बारे में, एक काइंड के बारे में आइडेंटिफाई करता है, हमें बताता है, उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे अगर हम बोले the boys are playing, here the boys is a group of what, a class of a person. boys का मतलब क्या है? अगर मैं कहूं कि दो लड़के खड़े हैं, तो दोनों के बीच में कॉमन क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि दो लड़के खड़े हैं, दोनों के बीच में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या हो सकता है? कॉमन ये है कि दोनों लड़के हैं, दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्लास, राइट। अगर मैं कहूं कि एक लड़का और एक लड़की है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन ये हो सकता है कि दे बोथ आर ह्यूमन बींग्स, दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पीसीज। सो दिस इज नोन एज कॉमन नाउन। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, एनिमल और पीपल। एक ऐसा नाउन जो हमें किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बताए, एक स्पेसिफिक ग्रुप, जो एनिमल का हो सकता है, लोगों का हो सकता है, या किसी चीज का हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे अगर हम कहें प्राइड ऑफ लायंस, हियर द वर्ड प्राइड indicates a group of lions, right? So it will be a collective noun. A group of lion is known as a pride, and they are of a one kind, so it's a collective noun. Again, a flock of sheep. फ्लॉक मतलब बहुत सारी जो भेड़ें होती हैं, उनके ग्रुप को हम फ्लॉक बोलते हैं, तो फ्लॉक ऑफ शीप, राइट। सो अगेन द वर्ड फ्लॉक रिप्रेजेंट्स व्हाट? अ कलेक्टिव ग्रुप ऑफ अ person, sorry, of a animal. A collective group of an animal is known as a flock. Here flock refers to a group of sheep. Next word is a band of musicians. म्यूजिशियंस का क्या होता है? बैंड होता है, जिसमें बहुत सारे म्यूजिशियंस होते हैं, कुछ ड्रमर होंगे, कुछ ट्रम्पेट्स बजा रहे होंगे, अलग अलग तरह के म्यूजिशियंस होते हैं, ठीक है। तो उनके जो ग्रुप होता है, उनका जो समूह होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, राइट। एंड अ पेयर ऑफ शूज, अगेन पेयर में हम जानते हैं दो होता है, ठीक है, अकेले सिंगल पेयर नहीं होता, पेयर में दो होता है, अगेन इट इज अ कलेक्टिव थिंग, राइट। सो दैट इज वाई अ पेयर ऑफ शिप। हम बोलते हैं अ फ्लीट ऑफ शिप्स। शिप्स, फ्लीट ऑफ शिप्स। फ्लीट ऑफ शिप्स का क्या मतलब है? जब समंदर में बहुत सारी शिप्स एक साथ चलती हैं, उनके ग्रुप को हम फ्लीट बोलते हैं, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, राइट। सो दोज वर्ड्स और विच इंडिकेट्स अ कलेक्टिव थिंग, अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन, थिंग और एन एनिमल इज नोन एज अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन किसी भी पर्सन, जानवर या किसी इंसान के ग्रुप के नाम को कलेक्टिवली बताता है। सो इट इंडिकेट्स द ग्रुप ऑफ अ पर्सन, एनिमल और अ थिंग, दैट इज नोन एज अ कलेक्टिव नाउन। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। लेट्स हैव अनदर वन, कॉन्क्रीट नाउन की अगर हम बात करें, व्हाट इज अ कॉन्क्रीट नाउन? Definition says it refers to objects that are material and can be perceived or felt by the human senses. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम देखें, इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मटेरियल, वो ऑब्जेक्ट्स, वो चीजें जो हम देख सकते हैं, जिनको छू सकते हैं अपने सेंसेस से,
हम जिनको फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, द पेपर इज लाइंग अंडर द टेबल। जो पेपर है वो टेबल के अंडर में है, नीचे है, राइट। हियर पेपर एंड टेबल बोथ आर कॉन्क्रीट नाउन्स। व्हाई? बिकॉज दे बोथ आर मटीरियल। ये दोनों क्या है? मटीरियल है। ओके, इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं बाय आवर सेंसेस, एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज कॉन्क्रीट नाउन, राइट। Next is, I had a glass of milk. A glass of milk is what? It is a material, right? ग्लास भी मटीरियल है, मिल्क भी मटीरियल है। हम ग्लास को भी छू सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, और मिल्क भी मटीरियल है, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। सो एनीथिंग विच कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, ओके, एंड हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, ओके, इज कम्स अंडर कॉन्क्रीट नाउन। नेक्स्ट, आराध्य गोज टू मार्केट बाय कार। आराध्य जो है वो गाड़ी से मार्केट जाता है। सो यहां पे अगेन आराध्य इज अ बॉय एंड ही इज गोइंग टू मार्केट बाय अ कार। सो हियर द कार इज अ मटीरियल नाउन वेयर वी कैन सी, टच एंड फील द एग्जिस्टेंस ऑफ इट। रवि ओपन द डोर। रवि ने दरवाजा खोला। तो दरवाजा जो खोला वो क्या है? इट इज मटीरियल थिंग, ओके, इट इज समथिंग विच इज फिजिकली एग्जिस्टिंग। वी कैन सी, वी कैन टच, वी कैन फील द डोर। सो डोर एंड कार हियर विल बी अ कॉन्क्रीट नाउन। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज आवर मटीरियल नाउन। व्हाट इज अ मटीरियल नाउन? मटीरियल नाउन किसे कहते हैं? इट इज द नेम ऑफ अ मटीरियल और ए सब्सटेंस। कोई भी मटीरियल है, ठीक है, उसका नाम हो गया, या कोई सब्सटेंस है, ठीक है, उसको हम लोग मटीरियल नाउन में कहते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। अगेन, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड क्या है? एक कीमती मेटल है। सो हियर गोल्ड इज द नेम ऑफ मटीरियल, अगेन इट इज अ मटीरियल नाउन। नेक्स्ट, मिल्क इज अ बेनिफिशियल ड्रिंक। मिल्क इज द नेम ऑफ अ मटीरियल, okay, again it is a material noun. Air in this city is highly polluted. इस शहर की हवा जो है वो काफी polluted है। तो ये जो एयर है यहां पे, ये क्या होगा? एयर इज अ मटीरियल, राइट। इट इज द नेम ऑफ अ मैटर विच एग्जिस्ट। सो अगेन दिस विल बी अ material noun, okay. And the last sentence says, may I have a glass of water? So water here again is the name of a material which is existing in a physical form, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, right? So it is the name of a matter, that is why it comes under a material noun. So I hope कि यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। Next is abstract noun. Now what is an abstract noun? Abstract noun किसे कहते हैं? Abstract noun is a name of any quality, state or action. किसी क्वालिटी, स्टेट या एक्शन को जब हम कोई नाम दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। इट इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन. In other words, it refers to anything which cannot be perceived by the five senses of the human body. Again, as the definition says, so इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, दैट इज वाई वी कैन नॉट परसीव इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें क्वालिटी की, अगर हम बात करें क्वालिटी, goodness is a quality of a person, okay, he is very good, goodness is the quality, his honesty is the quality of a person, right? So love is a strong feeling. Here love is what? A state of thing in which we fall. So love is a state of a being जिसमें हम पढ़ते हैं. तो love क्या होगा? Love is a wonderful feeling and also it is a state of being. Again, according to the definition, it says name of a state. So love here is a abstract noun. Now laughter is the best medicine. अगर हम बात करें laughter की, laughter, हंसना सबसे अच्छी दवा होती है. Laughter is the best medicine. So again, laughter is an action which is being performed, right? It's a kind of action and we are giving it a name.
अगर हम हंसते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं? इट्स लाफ्टर, राइट? सो अगेन इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट, गुडनेस इन एनी फॉर्म इज अप्रिशिएटेड. गुडनेस मतलब अच्छाई, किसी भी रूप में उसकी सराहना होती है. तो गुडनेस इन एनी फॉर्म इज appreciated. Here goodness is nothing but an abstract noun. Okay, and the last is we are at our best in our childhood. हम लोग अपने बचपन में सबसे अच्छी जिंदगी जीते हैं. वी आर आर बेस्ट एट आवर चाइल्ड. अगेन द चाइल्डहुड इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? अ स्टेट ऑफ बीइंग. एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी अवस्था जिसमें हर इंसान जिससे होके गुजरता है, राइट? सो दैट इज हाउ वी कॉल इट अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो हमने क्या सीखा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के किसको कहते हैं? वो नाउन जो किसी क्वालिटी, किसी एक्शन या किसी स्टेट का नाम बताता है, राइट? दे कैन बी फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव्स ऑल्सो, वर्ब्स ऑल्सो एंड फ्रॉम नाउन ऑल्सो, राइट? अगर हम बात करें कि एडजेक्टिव से कैसे इसको बना सकते हैं, सो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन. ही इज वेरी गुड. सो गुड से क्या हो जाएगा? गुडनेस. अगेन इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट? अगर हम वर्ब की बात करें कि वर्ब से कैसे बना सकते हैं, सो वर्ब क्या हो सकता है? वर्ब की अगर हम बात करें, हाउ कैन वी मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम अ वर्ब? लाफिंग इज अ वर्ब एंड लाफ्टर इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, right? So similarly we can form abstract noun from these words. So यहां तक I hope कि आपका concept clear हो गया होगा. Okay, now we will move on to the next topic which is pronoun. थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए इसको. ठीक था यहां तक? कितना सेकंड का हुआ? हाँ अभी नहीं, हाँ और है, अभी रोक दीजिए थोड़ा इसको. अच्छा, पॉज हो जाएगा ना? पॉज. Our next topic is pronoun. Okay, so what is a pronoun? Pronoun किसे कहते हैं? Pronoun is a word used instead of a noun. अगर हम noun की जगह कोई word use करते हैं sentence में, उसको हम क्या बोलते हैं? Pronoun बोलते हैं. और क्यों use करते हैं हम इस pronoun को? What is the use of pronoun? For example, अगर मैं आपको एक sentence दूं, Rahul is a good boy. Rahul is an honest boy. Rahul plays cricket. राहुल लाइक स्वीट्स. ये सारे जितने भी सेंटेंसेस हैं, इसमें हमने एक चीज नोटिस किया कि राहुल का नाम बार बार रिपीट हो रहा है. यस, एंड वो सुनने में थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता. इट्स नॉट गुड लिसनिंग दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस वेयर एवरी टाइम यू हैव टू रिपीट द सेम वर्ड. तो रिपीटिशंस को अवॉइड करने के लिए, ये जो बार बार हम रिपीटिशन ना कर पाए नाउन्स को, ठीक है, इसकी जगह हम प्रोनाउन को यूज करते हैं. सो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन विच इज यूज्ड टू अवॉइड रिपीटिशंस. रिपीटिशंस को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ अ नाउन, राइट? ऑल्सो प्रोनाउन आर द शॉर्ट वर्ड्स दैट कैन डू एवरीथिंग व्हिच अ नाउन डज इन अ सेंटेंस. Like a noun, it can be the subject of the sentence. Noun की तरह, जैसे noun subject बनकर sentence को open करता है, उसी तरीके से pronoun भी sentence को open कर सकता है. It can be the subject of the sentence. Now, what are the examples of pronoun? अगर हम देखें, he, she, it, I, me, us, this, them, that, etc. These all are pronouns. Why? Because they are used in place of a noun. नाउन की जगह ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं, सारे वर्ड्स यूज करते हैं. दैट इज व्हाई वी कॉल देम अ प्रोनाउन. नाउ अगर हम एक सेंटेंस देखें, रवि एंड आराध्य आर बेस्ट फ्रेंड्स. रवि और आराध्य बेस्ट फ्रेंड्स हैं. अगेन दे स्टडी इन द सेम स्कूल. वो दोनों एक स्कूल में पढ़ते हैं. तो चूंकि हमें रवि और आराध्य को दोबारा रिपीट नहीं करना था, इस वजह से हमने दे को यूज किया. एंड सिंस इट्स मोर देन वन पर्सन, एक लोग से ज्यादा की बात की जा रही है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग अ प्लूरल प्रोनाउन व्हिच इज दे. ठीक है, सो दे हियर रेफर्स टू रवि एंड आराध्य. सो रवि एंड आराध्य आर बेस्ट फ्रेंड्स. वो दोनों अच्छे दोस्त हैं और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं. दे स्टडी इन द सेम स्कूल. सो दे हियर रेफर्स टू रवि एंड आराध्य.
Now let's look at the different types of pronouns that we have. What are the different types of pronouns? अलग अलग तरह के pronoun होते हैं हमारे पास. Let's see, let's have a look at them. पहला pronoun है indefinite pronoun. Indefinite pronoun किसे कहते हैं? वो pronoun जो किसी particular या specific चीज के बारे में indicate नहीं करता है, उसको हम indefinite pronoun कहते हैं. The pronoun which does not indicates about a specific person or a thing is known as an indefinite. As the name suggests, indefinite का मतलब क्या होता है कि something which is not definite, right? Let's have a look at the definition. Indefinite pronouns are used to refer to people, places or things that are unknown or not stated. So indefinite pronouns उन लोगों के बारे में, उन जगहों के बारे में और उन चीजों के बारे में बताने के लिए किया जाता है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, अबाउट whom we don't know, right? जो हमारे लिए अननोन है, मैं उनको नहीं जानता, हम उनके बारे में नहीं जानते. जैसे somebody has stolen my pen. किसी ने मेरा पेन चोरी कर लिया, मुझे नहीं मालूम कि किसने किया. I don't know who that person is, right? So somebody, I'm using the word somebody, किसी ने चोरी किया है. Now this word somebody is a indefinite pronoun. ये किसी particular या specific person को denote नहीं करता है. That is why it is an indefinite pronoun. Next example अगर हम देखें, do you need anything else? क्या आपको कुछ और चाहिए? मुझे नहीं मालूम कि आपकी क्या जरूरत है, आपको क्या चाहिए. तो हमने क्या बोला? डू यू नीड एनीथिंग एल्स? क्या आपको कुछ और भी चाहिए? ठीक है, आई एम नॉट रेफरिंग टू एनीथिंग स्पेसिफिक और सर्टेन थिंग, राइट? सो दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड एनीथिंग एल्स, कुछ और. तो ये जो एनीथिंग एल्स है, दैट इज अगेन एन इनडेफिनिट प्रोनाउन. हैज एनीवन सीन माय फोन? क्या किसी ने मेरा फोन देखा है? हैज एनीवन सीन माय फोन? क्या मेरा फोन किसी ने देखा है? मुझे नहीं मालूम कि किसने देखा है. कोई भी हो सकता है किसी ने ना भी देखा हो सकता है किसी ने देखा भी हो, राइट? सो आई एम आस्किंग हैज एनीवन सीन माय फोन? किसी ने मेरा फोन देखा है क्या? सो हियर एनीवन, सिंस आई एम नॉट रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, आई एम नॉट इंडिकेटिंग एनी पर्सन, आई एम नॉट आस्किंग एनी पर्सन इन पर्टिकुलर that who has seen my pen, so I'm using the word anyone, and that is why it is an indefinite pronoun. नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, nobody answered the doorbell. किसी ने डोरबेल का जवाब नहीं दिया. nobody answered the doorbell, right? so मुझे नहीं मालूम किसी ने दिया नहीं दिया, I have no idea, no clue. किसी स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि सपोज कीजिए घर में 3 लोग थे या 4 लोग थे, किसी ने नहीं बजाया, राहुल, रोहित, अमित, तीनों में से किसी ने, मुझे नहीं मालूम. सो आई एम सेइंग nobody answered the doorbell. Nobody is here is again indicating something not specific, not certain, not in particular. That is why nobody is again a indefinite pronoun. I hope यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, राइट? नेक्स्ट देख लेते हैं, पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं. व्हाट इज अ पर्सनल प्रोनाउन? द वर्ड्स लाइक आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे. These words are known as personal pronouns because they stand for a specific person. ये जो words हैं इनको हम personal pronouns बोलते हैं, he, she, it, they, I, we, you, because ये किसी खास इंसान के लिए यूज किए जाते हैं. And these personal pronouns stand for 3 persons. Number 1, first person, second person and third person. Now the words I and we denote person or persons speaking. जो I और we वर्ड है वो डिनोट करता है पर्सन को, किसी एक पर्सन को या उन पर जो बोल रहे हैं, राइट? द वन हु इज स्पीकिंग. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द पर्सनल प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन. सो I and we are what? They are the personal pronoun of first person because they refer to the person who is speaking. Now the word you refers to second person. Why? Because it denotes the person spoken to. जिससे बात कही जा रही है उसके बारे में बता रहा है, right? So it is referring to the person spoken to.
That is why it is known as personal pronoun of second person, right? Next, personal pronoun of third person. The words like he, she, it, and they, right? These words, they denote the person or persons spoken of, जिनके बारे में बात की जा रही है. he, she, it, they, इनके बारे में बात की जा रही है, तो हम इन लोगों के लिए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को यूज करेंगे. एंड दैट इज व्हाई ही, शी, इट एंड दे इज अ personal pronoun of third person, right? Let's have a look at some of the examples. Rita says that she wants to use the pen that belongs to her. रीटा कहती है कि उसे वही पेन यूज करना है जो उसका है, right? So here she and her both are what? Personal pronouns. Okay? क्यों? क्योंकि ये किसके लिए आ रहा है? she और her दोनों रीटा के लिए आ रहा है, स्पेसिफिक पर्सन के लिए आ रहा है. That is why it is a personal pronoun. I have more strength than he. मेरे पास उससे ज्यादा ताकत है. I have more strength than he, right? So that is why here I and he both are personal pronoun because they are referring to a specific person. I refers to मेरे बारे में and he refers to the person who is being spoken of. So that is why we can say that I and he both are what? Personal pronoun. Okay? Let's have a look at the next pronoun. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. व्हाट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें, क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट. ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम तब यूज करते हैं जब कोई एक्शन होता है सब्जेक्ट के द्वारा सेंटेंस में और उस एक्शन का रिजल्ट उसी सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करता है, उस समय हम क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके, लेट्स सी द वर्ड्स माई सेल्फ, हरसेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, themself, yourself are called reflexive pronoun because they are used to indicate or reflect the action which is taking place on the subject itself in a sentence. Example अगर हम बात करें, he did it himself, उसने खुद से काम किया. he did it himself. तो जो करने का एक्शन का जो रिजल्ट आ रहा है वो किसके ऊपर आ रहा है? he के ऊपर आ रहा है. himself, उसने खुद ही किया काम. That is why himself is a reflexive pronoun. Okay? We designed the artwork ourselves. हमने खुद से डिजाइन किया आर्टवर्क को, किसी और ने हमारी मदद नहीं करी, हमने खुद से डिजाइन किया आर्टवर्क को. We designed the artwork ourselves. तो जो एक्शन का रिफ्लेक्ट हो रहा है वो किस पे बन रहा है? we के ऊपर. So इसके जगह हम क्या यूज करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ourselves. So this ourselves is reflecting upon the action, okay, which is done by the subject. Again, she cooked the food herself. उसने खुद से खाना बनाया. Here she is the subject, okay, and herself refers to she only because उसने खुद से खाना बनाया. तो खुद से खाना बनाया तो बनाने का, कुकिंग का एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? She is performing. That is why herself refers to she. So this is the रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. एक चीज और हम देखेंगे इसमें, बहुत ही सिंपल चीज है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर आप ध्यान से देखें तो वो हमेशा वर्ब के बाद आता है. इट इज कंसिडर्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ओके, विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट और विच गिव्स द इंडिकेशन अबाउट द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट. सो दिस इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. लेट्स हैव अ लुक एट द अदर वन. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की अगर हम बात करें, व्हाट इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? डिमॉन्स्ट्रेट करना का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में बताना या किसी चीज को इंडिकेट करना, स्पेसिफिकली डिमॉन्स्ट्रेट करना, उसके बारे में स्पेसिफिकली कुछ बताना. दीज प्रोनाउंस पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस. ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये किसी सेंटेंस में किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में हमें बताते हैं. देयर आर ओनली 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ओके, 2 सिंगुलर and 2 plural. The demonstrative pronouns are this and that, okay, which is singular pronoun, and these and those, they are
plural pronouns. So only 4 pronouns, demonstrative pronouns are there in English language. ओके, एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, दिस इज अ हॉकी स्टिक, ये एक हॉकी स्टिक है। हम एक पर्टिकुलर हॉकी स्टिक की बात करें, मान लीजिए वो जमीन पे पड़ी है, तो हम कह सकते हैं दिस इज अ हॉकी स्टिक। ये स्टिक जो यहां जमीन पे पड़ी है, दिस इज अ हॉकी स्टिक। तो हम इस स्टिक के बारे में बात करें, समथिंग स्पेसिफिक बता रहे हैं, दैट इज वाई दिस को डिनोट कर। दैट इज अ कार, वो एक कार खड़ी है। अगेन वी आर डिस्क्राइबिंग अबाउट सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, दैट इज अ कार, वो एक कार है, राइट। दैट इज वाई वी आर यूजिंग, और चूंकि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम भी सिंगुलर यूज कर रहे हैं। दिस एंड दैट बोथ आर सिंगुलर, सो दे आर रिप्रेजेंटिंग और टेलिंग अस समथिंग स्पेसिफिक in the sentence about stick in the first one and the car in the second one, and that is why they are known as demonstrative pronouns. They are demonstrating us about something specific in a sentence. Next, possessive pronoun. Again, what is a possessive pronoun? जैसा हम जानते हैं, the word possession, possession का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? possession का मतलब होता है something that which we own or possess, जो हमारे पास होता है, जिसपे हमारा मालिकाना हक है। जो चीज आपकी है और किसी की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी है, आप उसको क्लेम कर सकते हो कि दिस थिंग बिलोंग्स टू मी, दिस इज माइन, राइट। सो ऐसे प्रोनाउंस जो हमारे मालिकाना हक को या हमारी अथॉरिटी को या हमारे ओनरशिप को डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज नोन एज पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, आइए डेफिनेशन देखते हैं। These words like mine, hers, ours, theirs and yours are called possessive pronoun. ऐसे वर्ड्स जैसे mine मेरा, hers उसका, ours हमारा, theirs उनका and yours तुम्हारा, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? possessive pronoun। क्यों? क्योंकि ये possession को रिफ्लेक्ट करता है, हमारे ओनरशिप को बताता है। They are used to talk about things that belong to somebody. ये उन चीजों के बारे में बताता है जो किसी और का है, जिसपे किसी और का हक होता है। जैसे her car is faster than mine. उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से तेज है। किसकी गाड़ी से तेज है? मेरी। The one which I possess or own. So again, mine is a possessive pronoun. Next देख लेते हैं। That bag is ours and not theirs. वो बैग जो रखा है ना, वो हमारा है, उनका नहीं है। तो अगेन हम अपनी अथॉरिटी क्लेम कर रहे हैं उनके ऊपर, हम अपनी ओनरशिप क्लेम कर रहे हैं कि वो बैग हमारा है, वी आर द ओनर्स ऑफ द बैग। अगेन पोजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे, आर्स एंड देयर्स आर पोजेसिव प्रोनाउंस। दिस पेन इज योर्स, ये जो पेन है ना, ये आपका है, आप इसके मालिक हैं, इट बिलोंग्स टू यू, सो दिस पेन इज योर्स, योर प्रोनाउन का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है इज द फॉल्ट देयर्स और योर्स, ये जो गलती हुई है क्या आपकी है या उनकी है? तो गलती किसके द्वारा हुई है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, हु इज रिस्पॉन्सिबल? सो अगेन देयर्स मींस उनका, योर्स मतलब तुम्हारा या आपका। तो हम यहां पे अगेन पोजेसिव प्रोनाउंस को यूज करेंगे फॉल्ट को इंडिकेट करने के लिए कि ये जो गलती हुई है, दिक्कत हुई, किसकी तरफ से हुई है, किसकी गलती है ये, who is the responsible person for this. So this is all about possessive pronoun. I hope यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, इट इज रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, नाउ व्हाट आर रिलेटिव प्रोनाउन? As per the definition, let's see the definition first. These pronouns refer to nouns mentioned previously, and it is also used to introduce a relative clause that describes noun or other pronoun. ये pronoun उन सब्जेक्ट में यूज किए हुए नाउन्स को डिनोट करता है, ठीक है, जिसके बारे में लैटर हाफ में डिस्क्राइब किया गया है। ऑल्सो इट कनेक्ट्स independent clause with a relative clause in a sentence, okay, and tells us something about the subject of the sentence. और क्लियर कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आराध्य इज अ फ्रेंड हु इज ऑलवेज देयर फॉर मी। आराध्य मेरा दोस्त है जो मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता है, मेरी हर मुश्किल में, हर जरूरत में वो मेरे लिए रहता है। अगेन ये जो वर्ड हु आया है, यहां से अगर हम देखें, so it is a relative clause, dependent clause, मतलब
दिस सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट। आराध्य इज अ फ्रेंड, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। आराध्य इज अ फ्रेंड, आराध्य इज अ फ्रेंड हु इज ऑलवेज देयर फॉर मी। आराध्य एक ऐसा दोस्त है मेरा जो मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो इन दोनों को जोड़ा जा रहा है किससे, हु से। इट्स अ रिलेटिव प्रोनाउन एंड हु रेफर्स टू आराध्य, हु इज द सब्जेक्ट इन द sentence, right? So here who is indicating something about आराध्य and that is why it is a relative pronoun। ये relation show कर रहा है किस चीज का, a person who is always there for me। so he is a person who always stands by me and that is why who is used in order to connect these two part of sentences। here the relative pronoun who introduces a dependent clause, right? so यहाँ पे ये जो pronoun है who, ये एक dependent clause को इंट्रोड्यूस कर रहा है, बता रहा है, और ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन को जो फ्रेंड है मेरा। इट मॉडिफाइज द नाउन फ्रेंड, राइट? हु इज ऑलवेज देयर फॉर मी, सो इट मॉडिफाइज द फ्रेंड नाउन फ्रेंड हु इज ऑलवेज देयर फॉर मी। फ्रेंड क्या है, इट्स अ कॉमन नाउन, तो इसके मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, राइट? आराध्य इज अ फ्रेंड who is always there for me and that is why who is modifying the meaning of the word friend and that is why it is a relative pronoun। let's have a look at some more examples, right? if I say I need to find a person who knows Java programming, मुझे एक ऐसे पर्सन की जरूरत है जिसको जावा प्रोग्रामिंग आती है। हो सकता है कि मेरे लिए बहुत जरूरी हो जावा प्रोग्रामिंग का, राइट? मुझे कुछ जरूरत हो तो मैं ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा हूं जिसको जावा प्रोग्रामिंग ऑलरेडी आती है। आई नीड टू फाइंड अ पर्सन हु नोज जावा प्रोग्रामिंग। अगेन हु हियर रेफर्स टू अ पर्सन, ओके? सो हु इज मॉडिफाइंग द नाउन पर्सन एंड दैट इज व्हाई इट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। She gave a ride to her friend whose car was not available। उसने अपने दोस्त को एक राइड दिया अपने साथ जिसकी गाड़ी अनअवेलेबल थी। तो whose car किसकी बात की जा रही है? फ्रेंड की बात की जा रही है। शी की नहीं, शी जो लड़की है उसके फ्रेंड की बात की जा रही है जिसकी गाड़ी उस समय अवेलेबल नहीं थी, इसलिए उसने अपने बाइक पे या स्कूटी पे उसको एक राइड दी, राइट? सो हियर whose is connecting these two independent and dependent clauses and also telling us about a friend। next अगर हम देखें, the mobile phone which I lost yesterday was returned to me by an honest man। again here we are talking about a particular thing, mobile phone which was lost by me yesterday, जो मेरे द्वारा कल खो गया था और मुझे किसी एक ईमानदार आदमी ने दिया, दोबारा आप आकर उसने मुझे वापस किया। He was an honest person, he returned that phone to me। so which here refers to the mobile phone which I lost yesterday। again, okay, so here which will be a relative pronoun, it is relating to something specific in a sentence, that is the subject of the sentence। the employee helped the customer whom the manager brought over। एम्प्लॉय ने उस कस्टमर की हेल्प करी जिसे वो मैनेजर लेकर आया। तो हियर whom refers to the employee। whom किसकी बात की जा रही है? एम्प्लॉय की, जिसने उस कस्टमर की हेल्प की। सपोज कीजिए कोई शॉपिंग मॉल है, वहां कोई कस्टमर है, उसको प्राइस के बारे में नहीं समझ में आ रहा, प्रोडक्ट के बारे में नहीं समझ में आ रहा, उसने पूछा मैनेजर से जाके। सो मैनेजर कॉल्ड फॉर एन एम्प्लॉय, यू प्लीज कम एंड टेल हिम व्हाट इज द प्राइस और असिस्ट हिम इन बाइंग। So he helped that particular customer। So the employee helped the customer whom the manager brought over। उस एम्प्लॉय ने कस्टमर की मदद की जिसको मैनेजर लेकर आया। So whom here refers to the employee, right? And that is why it is a relative pronoun। Let's have a look at the next pronoun। The next is an interrogative pronoun। What is an interrogative pronoun? Interrogative pronoun किसे कहते हैं? As the name suggests, जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है, इंटरोगेट करना मतलब पूछना, टू आस्क क्वेश्चंस, टू इंक्वायर अबाउट समथिंग, राइट? सो इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज व्हाट? इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज नथिंग बट द वर्ड्स दैट आस्क यू क्वेश्चंस, like the question words who, what, whom, which,
whose are called interrogative pronouns। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जैसे who हो गया, what हो गया, whom हो गया, which हो गया, whose हो गया, ये सब जो वर्ड्स हैं ये सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं, इनिशियल में आते हैं और ये क्वेश्चन पूछने के काम में आते हैं। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, राइट। जैसे व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से, मैं पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग क्वेश्चन अगेन, सो व्हाट हियर इज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हु इज योर क्लास टीचर, आपकी क्लास टीचर कौन है, तुम्हारी क्लास टीचर कौन है, मुझे नहीं मालूम, हु इज योर क्लास टीचर, आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन, राइट। सो अगेन दिस वर्ड इज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। विच ऑफ दीज पेन्स इज योर्स, इनमें से कौन सी पेन तुम्हारी है, विच ऑफ दिस पेन इज योर्स, आई डोंट नो because there are so many pens lying on the table and I don't know which one is yours. So I need to ask this question, which of these pen is yours, इनमें से कौन सा पेन तुम्हारा है। So जब हम क्वेश्चन पूछे which of these pens, again this word which is a interrogative pronoun which is used in the beginning of the sentence to ask a particular question. Last sentence देखते हैं, whom did you give the money to, आपने पैसे किसको दिए, whom did you give the money to, किसको तुमने पैसे दिए, मैंने हो सकता है पैसे दिए हो तुम्हें किसी काम को, आपने वो पैसे किसको दे दिए, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, whom did you give the money to। So again it is used for asking a particular question, that is why here the word whom is a interrogative pronoun। I hope यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज द नेक्स्ट प्रोनाउन। Now, what is a reciprocal? Reciprocal का मतलब क्या होता है? To have a mutual relationship. Reciprocal means what? For one another, for each other. Reciprocal. So, a pronoun is in a sentence that shows a mutual relationship or a mutual beneficial help to each other or a kind of action done on each other is known as a reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun वो pronoun होता है जो किसी sentence में एक्शन करने वाले पे सेम एक्शन हो रहा है या रिसीविंग एक्शन भी वही है जो हम एक्शन कर रहे हैं उसको डिनोट करता है, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन। दिस प्रोनाउन एक्सप्रेसेस अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये जो प्रोनाउन है ये म्यूचुअल मतलब पारस्परिक रिश्ते को दिखाता है कि आप दोनों के बीच का क्या रिश्ता है, क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है और क्या आपको रिटर्न में मिल रहा है। In other words, it refers to a condition where someone or something performs an action on others and get the same response in return। ठीक है, तो ये एक ऐसी कंडीशन को डिस्क्राइब करता है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कोई एक्शन परफॉर्म करता है और उसके बदले में सेम रिएक्शन सेम एक्शन उसको वापस मिलता है, राइट। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, वी हेल्प्ड ईच अदर, हमने एक दूसरे की मदद की। सो हेल्पिंग क्या होता है, मैंने उनकी मदद की, दैट इज व्हाई आई गॉट अ हेल्प फ्रॉम हिम, राइट। मैंने एक दूसरे की मदद की, मैंने उनकी मदद की और उन्होंने मेरी मदद की। तो ये जो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है हमारे बारे में, दैट विल बी शोन और डिस्क्राइब्ड बाय अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर इज अगेन अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स। राहुल एंड अमित हेल्प्ड ईच अदर। राहुल ने और अमित ने एक दूसरे की मदद की। राहुल ने अमित की मदद की और रिटर्न में उसको क्या मिला, अमित से हेल्प मिला। ओके, सो बोथ ऑफ देम आर हेल्पिंग ईच अदर। सो ईच अदर इज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन शोइंग और एक्सप्रेसिंग अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मेंबर्स ऑफ द टीम सपोर्टेड वन अनदर। ओके, द मेंबर्स ऑफ द टीम सपोर्टेड वन अनदर। जो टीम के मेंबर्स होते हैं, टीम कैसे चलता है, टीम वर्क से चलता है। जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, तभी हम टीम में बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं, राइट फ्रेंड्स। सो द मेंबर्स ऑफ द टीम सपोर्ट वन अनदर। अगेन हियर वन अनदर इज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन बिकॉज द एक्शन इनिशिएटेड बाय अ वन पर्सन and the response received by the same person is almost similar, right? They are helping each other, वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, and that is how the team works and performs. So again here one another is a reciprocal pronoun. Next, the boxer punched each other. Boxing जब होती है तो क्या करते हैं, एक दूसरे को पंच मारते हैं। तो एक ने मारा, पहले बॉक्सर ने दूसरे को पंच मारा, दूसरे ने भी पहले वाले को पंच मारा। So whatever action was initiated by the first boxer
he got the same action on him by the second boxer. पहले बॉक्सर ने जो एक्शन इनिशिएट किया था, दूसरे बॉक्सर ने भी सेम वही एक्शन उस पे किया. सो अगेन अ म्यूचुअल रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड विच इज डिनोटेड बाय द रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर. यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से. ओके, नेक्स्ट प्रोनाउन हम देखते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन. इंटेंसिव जो वर्ड है उसका मतलब ही होता है कुछ बहुत गहरा, समथिंग विच इज वेरी प्रोफाउंड, डीप, इंटेंस फीलिंग्स को जो डिनोट करता है. यहां पे इंटेंसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो एम्फेसिस करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर. द वन विच एम्फेसाइजेस ऑन इट्स सब्जेक्ट इटसेल्फ इज नोन एज अ इंटेंसिव प्रोनाउन. और सबसे बड़ी बात है कि इनमें भी सेल्फ लगा होता है जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में लगा होता था. मगर फर्क दोनों में इतना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन में फर्क इतना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आता है और इंटेंसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ जाता है. और अगर आप इसको सब्जेक्ट हटा भी दोगे सेंटेंस से, देन देयर विल बी नो डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. ओके, देयर विल बी नो डिफरेंस इन द सेंटेंस. Let's have a look at the definition. Now the definition says the pronoun that refers back to the subject of a sentence. The pronoun that refers back to the subject of a sentence in order to emphasize it is called intensive pronoun. वो pronoun जो रेफर करता है किसको? सब्जेक्ट को. सेंटेंस में दिए हुए सब्जेक्ट को जो रेफर करता है. क्यों रेफर करता है? उसके मीनिंग को ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर ज्यादा जोर देने के लिए. उस प्रोनाउन को हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन. लेट्स टेक एन एग्जांपल. द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ अपीयर्ड एट द रैली. प्राइम मिनिस्टर खुद रैली में आए. इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, किसी ने उम्मीद नहीं की थी. तो हम ये कह सकते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन अनएक्सपेक्टेड चीजों को भी डिस्क्राइब करता है, शो करता है. इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड दैट ही विल कम, बट ही हिमसेल्फ appeared at the rally. वो खुद आए रैली में. Next, the little girl herself drove the car to the hospital. छोटी बच्ची खुद से कार चलाकर हॉस्पिटल गई. Right? It was not expected. हमने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी छोटी बच्ची कार चला के खुद से हॉस्पिटल चली जाएगी. But she herself, the little girl herself, उसने खुद से ड्राइविंग की. हो सकता है कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई हो, वो सीख रही हो, उसको आता हो. So she herself took the risk and drove the car to the hospital. So the little girl herself, उसने खुद से, यहां herself आया है little girl के लिए, right? तो little girl herself drove the car to the hospital. Again, herself here is an intensive pronoun which is referring back to the or emphasizing about the subject of the sentence. Next sentence देखते हैं. The inspector himself was responsible for the theft. वो इंस्पेक्टर जो था, पुलिस इंस्पेक्टर, उनका काम होता है कि चोरी रोकना, ठीक है, क्राइम को कंट्रोल करना. बट द रिस्पेक्टर इंस्पेक्टर हिमसेल्फ, जो इंस्पेक्टर था वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल था उस चोरी के लिए. वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल था और कोई नहीं, वो खुद रिस्पॉन्सिबल था. सो हियर हिमसेल्फ रेफर्स टू द नाउन इंस्पेक्टर विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. अगेन हिमसेल्फ इज अ इंटेंसिव प्रोनाउन एज इट refers to the subject and it emphasizes on the subject of the sentence. All right. Now there are some rules which is associated with pronouns. Let's have a look at them. There are some simple rules. Subject pronouns may be used to begin the sentences. जो subject pronouns होते हैं जैसे I, we, you, they, he, she, it. Okay, these are known as subject pronouns. तो इनको हम सेंटेंस बिगिन करने के लिए यूज कर सकते हैं. जैसे we did a great job. Here we is a subject pronoun. Right? हमने अच्छा काम किया. So we can be used in place of a subject in a sentence. Right? So we did a great job. Here we is a subject pronoun and it is starting a sentence. It is beginning a sentence. That is why it can be said that this rule is valid. Subject pronoun may be used to begin the sentences. Sentence number 2 देख लेते हैं. Indefinite pronouns do not have antecedents. They are capable of standing on their own. Indefinite pronoun जो होते हैं, somebody, nobody, no one, someone, इनको किसी वर्ड की जरूरत नहीं होती सेंटेंस बिगिन करने के लिए, या ये किसी को फॉलो नहीं करते. इट्स नॉट नेसेसरी फॉर देम. दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन. ये खुद से अपनी मीनिंग को और अपने सेंटेंसेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं. दे आर केपेबल इनफ ऑफ
standing on their own, describing the sentence on their own, right? Like, no one likes the sound of harsh music at night. किसी को नहीं पसंद है म्यूजिक की हार्श नॉइज, स्पेशली रात को, राइट? सो इट सेज नो वन लाइक्स, वी डोंट नो, हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे। अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन इंडेफिनिट प्रोनाउन। नो वन मतलब हम किसी खास व्यक्ति या पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सब की बात कर रहे हैं इन जनरल। indefinite हम बात कर रहे हैं, राइट? सो no one here again is a indefinite pronoun which does not require any antecedents and it can alone define the sentence and begin the sentence. It can alone be used in the sentence. Last जो है इसका रूल वो है possessive pronoun shows ownership, as the word suggests, possession, ownership, claim your authority, right? जो हमने पहले पढ़ा था। So possessive pronouns क्या दिखाते हैं हमें? ownership show करते हैं, हमारा हक, हमारी अथॉरिटी किसी चीज पे। दे डू नॉट नीड अपोस्ट्रोफीज, उनके पहले उसमें अपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइक जैसे अगर हम सेंटेंस देखें, द डॉग वॉश्ड इट्स टेल, नाउ द टेल बिलोंग्स टू हुम? डॉग। ये जो पूंछ है वो किसकी है? डॉग की पूंछ है। सो वो उसका मालिक है, चीज उसकी है, बिलोंग करती है डॉग को। दैट इज वाई वी विल यूज इट्स बट वी विल नॉट यूज अपॉस्ट्रोफी हियर। सो पॉसेसिव प्रोनाउन को जब भी हम यूज करते हैं उसमें हम कभी भी अपॉस्ट्रोफीज यूज नहीं करते। अगेन दिस इज अ रूल ऑफ प्रोनाउन। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा आपके लिए, ठीक है? और मैं ये उम्मीद करता हूं, आई रियली होप दैट द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा इस पहले मॉड्यूल में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के, ठीक है? सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। थैंक यू।